ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں. غور سے سن لے, کون اللہ کو پسند نہیں؟ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. لو میں نہیں دے رہی تو تم کیوں دے رہے ہو؟ اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. غور سے سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج اپنے ناپسندیدہ بندوں کو لے کر آ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں. وہ اللہ پر, آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. یا اللہ شیطان کو کبھی ہمارا ساتھی نہ بنانا. یا اللہ ہماری مدد روح القدس کے ذریعے سے فرما دینا. اور ان لوگوں کا کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے, اللہ نے انہیں جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے. اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنی کر دیتا ہے. اور رمضان میں نیکی کتنا بڑھ جاتی ہے؟ 70 گنا تک چلی جاتی ہے. اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنی پسند آ جائے اور وہ اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے. یا اللہ ہم سب کو بھی اجر عظیم سے نواز دیں. اور پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کو گواہ بنائیں گے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تھا, اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب قرآن سنانے لگے, سورۃ النساء کی آیت تلاوت کر رہے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھایا, دیکھا اس آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, آنسوؤں سے رو رہے تھے. اور کیوں رو رہے تھے؟ آپ دیکھیں کہ گواہی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ سب کو گواہی کے بارے میں بتایا تھا نا, اور ہم نے کتنے شوق سے کہا تھا یا اللہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور پھر 7ویں پارے کے آپ کو بتایا تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ گواہی دینا آسان نہیں ہے. گواہی دینے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے, اذن مانگے اور کہیں یا میرے پیارے اللہ ہمیں اچھا اور بہترین گواہی دینے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا. وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو, اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ, یعنی اگر جنابت کی حالت ہو, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے, کیونکہ مسجد وغیرہ سے اور نیک جگہوں سے بھی آپ گزر سکتے ہیں اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہو. اور مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا, مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے, کیونکہ وہ ناپاکی میں بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ کسی بھی نیک جگہ سے, کوئی مسجد ہو گئی, کوئی مدرسہ ہو گیا, تو وہاں بیٹھیں گے نہیں. اگر راستہ ہے آپ کا تو آپ وہاں سے اس حالت میں گزر سکتے ہیں. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو, پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے. تو تیمم کی ایک آیت یہاں آئی اور ایک سورۃ المائدہ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں, پھر اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر سچے دین کے خلاف تانا زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا, ہم نے نافرمانی کی, اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم تو اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنا جائے. اور آپ سے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا, یعنی اے ہمارے چرواہے. اور بے شک اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا, لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی. استغفر اللہ.
चुनाचे वो सवाए चंद लोगों के ईमान नहीं लाते। तो या अल्लाह इन लानत ज़दा लोगों में हमारा शुमार कभी भी ना करना, और या अल्लाह कभी भी अल्लाह और रसूल के लिए हमारे दिल में राई के दाने के बराबर भी कोई बात ना आए कि जिससे अल्लाह और रसूल की नाफरमानी या नाराजगी का हम सबब बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ लोगो जिन्हें किताब दी गई हो, इस कुरान पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया, और इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। तुम ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें पीछे की तरफ फेर दे, या उन पर इसी तरह लानत भेज दे जिस तरह हमने सब्त वालों पर लानत भेजी थी। और याद रखो अल्लाह का हुक्म अटल है, बेशक अल्लाह ये गुनाह नहीं बख्शता। गौर से सुन लें, अल्लाह ये गुनाह नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उसके अलावा जिससे चाहे बख्श देता है। तो खुदारा सिर्फ और सिर्फ शिर्क की तरफ मत जाएं, बाकी अपने तमाम गुनाह रमजान में लाएं और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने लाकर ढेर करते चले जाए। या अल्लाह जी ये गुनाह भी है, या अल्लाह जी ये गुनाह भी है, या अल्लाह जी ये गुनाह भी है। कोई छोटा छोटा गुनाह भी हो तो वो लाएं और ढेर करते जाएं। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी रहमत से उस गुनाह को आग लगा देंगे और उनका पीछे नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप देखें क्या कहा गया, ईमान और एहतिसाब की नियत से जिसने रमजान के रोजे रखे और रात का क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो दुआ करें कि हम भी अपना एहतिसाब कर लें और हम शिर्क करने वालों में शामिल ना हो। और इसके अलावा अल्लाह जिसे चाहे बख्श देता है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, उसने झूठ गढ़ा तो उसने बड़े गुनाह का काम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी खुद बयान करते हैं? हर वक्त कहते रहते हैं मैं तो बड़ी नेक हूं, मैं तो बड़ी पारसा हूं, मैं तो बड़ा कुरान पढ़ती रहती हूं। कभी भी अपनी जुबान से ना कहें, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है, और वो लोगों पर खजूर की गुठली के धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। देखिए वो किस तरह अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, और उनके गुनहगार होने के लिए ये ही गुनाह काफी है। आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, उनका हाल ये है कि वो बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं, और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ईमान लाने वालों से ज्यादा हिदायत याफ्ता है। वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, जिस पर अल्लाह लानत करे तो उसके लिए कतन कोई मददगार नहीं पाएंगे। या अल्लाह हमें कभी भी लानत ज़दा लोगों में शामिल ना फरमाना। क्या वो ये समझते हैं कि उन्हें बादशाही का कुछ हिस्सा मिला है? फिर तो वो उन लोगों को तिल बराबर भी नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरे प्यारे अल्लाह जी, आपने हमारा रिस्क अपने हाथ में रखा। या अल्लाह जी, आपने हमारा रिस्क लोगों के हाथ में नहीं रखा। या अल्लाह जी, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। या अल्लाह जी, हमारे रिस्क को फरावान कर दे मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जी, हम में से किसी को लोगों के हाथ में ना देना, वरना ये लोग तो इतने थोड़ दिले हैं कि हमें तिल बराबर भी नहीं देंगे। या अल्लाह जी, या अल्लाह हम सब के रिस्क को फरावान कर दे, इतना 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 ज्यादा कर दे कि हम लोगों को भी देने वाले बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वो 10 किलो के पैकेट के लिए मर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आंटी फिर आजकल जी बिल्कुल रोजाना फौतगी जो है वो होती चली जा रही है। तो आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बंदों के हाथों में ना दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें खुद से इतने हमारे रिस्क में बरकतें डाल दे। हमेशा ये मांगा करे कि अल्लाह जी मुझे बरकत दे दे। कभी भी कसरत ना मांगे, बरकत मांगे। बरकत होगी तो इतना हो जाएगा कि वो कसरत को आप भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं वो 10,000 में पूरा महीना चला लेते हैं, और हमारे कितने लोग ऐसे हैं 10 लाख में उनके 15 दिन नहीं चलते। ऐसा ही है ना। आप देख लें आजकल, अगर आप एक आम मजदूर का किचन भी अगर जाकर देख लें तो वो किचन आपका महीने का 50, 60 और 1 लाख इससे नीचे तो वो आता ही नहीं है। तो ये मजदूर कहाँ से पूरा करता है जो बेचारा सारा दिन बैठा रहता है? अल्लाह उसके पेट में भी तो रिस्क डालता है। वो क्या है? अल्लाह ताला फिर बरकतों से नवाज देता है। थोड़ी चीज भी इतनी हो जाती है कि वो सबको पूरी हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से बरकतें मांगे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से इस आयत के बाद दुआ करें कि हमारा रिस्क किसी भी इंसान के हाथ में ना देना। क्या वो उन लोगों पर
क्या वो उस पर लोगों से हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें फजल से दिया? कभी भी अमीरों को देखकर हसद ना किया करें। चुनाचे हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत दी और बहुत बड़ी बादशाही दी, तो उनमें से बाज वो हैं जो उस पर ईमान लाए और बाज वो हैं जो इस पर ईमान लाने से बाज रहे, और उनके लिए दहकता जहन्नुम ही काफी है। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, आयत अंडरलाइन करे, बड़ी खौफनाक आयत है, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया हम जल्द उन्हें आग में डालेंगे, जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनकी जगह दूसरी खालें चढ़ा देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखें। बेशक अल्लाह बहुत जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, उन्हें हम जल्द ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो इनमें हमेशा रहेंगे। वहां उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम उन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम मानते उनके हकदारों को वापस कर दो, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें बहुत ही अच्छी बात की नसीहत करता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अतात करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की, और अतात करो उनकी जो तुम में साहिब अमर हो। फिर अगर तुम बाहम किसी चीज में इख्तलाफ करो तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो, अगर वाकई तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। ये बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि बेशक वो उस पर ईमान लाए जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया? वो चाहते हैं कि वो अपने मामलात का फैसला शैतानी चेलों से करवाएं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया कि ऐसे शैतानों का इनकार करें, और शैतान चाहता है कि उन्हें गुमराह करके दूर फेंक दे। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया, आओ रसूल की तरफ, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि वो आपकी तरफ आने से भी कतराते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान क्लासों का क्या हाल है, सब खाली पड़ी हुई हैं। और फिर उनका क्या हाल होता है जब उनके हाथों की लाई हुई मुसीबत उन पर आन पड़ती है, फिर वो कसमें खाते हुए आपके पास आकर कहते हैं, अल्लाह की कसम हमने तो भलाई और सुलह सफाई का इरादा किया था। ये वो लोग हैं कि अल्लाह जानता है कि उनके दिलों में क्या है। लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें, उन्हें नसीहत करते रहें, उनसे दिलों पर असर करने वाली बात कहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी जुबानों में भी असर पैदा कर दे, और या अल्लाह हमारी जुबानों से भी एक उम्मत को मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा दे। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अतात की जाए। अगर बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था आपके पास आते, फिर वो अल्लाह से बख्शिश मांगते और रसूल भी उनके लिए बख्शिश तलब करता, तो वो यकीनन अल्लाह बहुत तौबा करने वाला और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से माफी मांग लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जी हम सबको माफ फरमा दे। या अल्लाह जी हम इस कुरान क्लास को वसीला बनाते हुए आपसे माफी के तलबगार हैं, तौबा कर रहे हैं। या अल्लाह अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, या अल्लाह अपने गुनाहों पे पर्दा पड़ा रहना चाहते हैं। या अल्लाह जी हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लें, और हमारे गुनाहों में और हमारे दरमियान में या अल्लाह जमीन और आसमान जितना फासला कर दें। या अल्लाह हमें वो जुबानें ना दे जो बुराई बोले, या अल्लाह हमें वो हाथ ना दे जो बुरा करें, या अल्लाह हमें वो पैर ना दे जो बुराई की तरफ जाए। या अल्लाह हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमा दे। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में आपको फैसला करने वाला ना मान ले। फिर आपके किए हुए फैसले पर इनके दिलों में कोई तंगी ना होने पाए और वो इसे दिलो जान से मान ले। और अगर बेशक हम उन पर फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल करो, तुम अपने घरों से निकलो, तो इनमें से चंद एक के सिवा तो कोई भी ये काम ना करता। आजकल भी जरा आप कह के देख लेना किसी को कि फलस्तीन है, कश्मीर है, जहाद के लिए अगर हम निकलने के लिए कहें तो हम सब तो उठते ही 12-1 बजे हैं,
پھر اس کے بعد ہمارے اپنے اتنے کام ہوتے ہیں, اتنے ہم نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, ادھر بھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بھی جواب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر شام میں جا کر ہم کہیں فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کون سے ٹائم پر ہم نے تیریں اور تلواریں اٹھانی ہیں. ہم ماؤں نے تو وہ بچے پیدا ہی نہیں کیے جو محمد بن قاسم جیسے ہوتے, یہ تو بالکل قریب قریب کی ہے بات ہے, محمود غزنوی جیسے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماؤں کو ہی جو ہے وہ تعلیم سے دور کر دیا گیا. کاش کہ اس امت کی ماؤں کے پاس تعلیم آ جاتی تو یقین جانے بالکل علم آتا, تعلیم آتی, اور وہ علم آتا جو وحی الہی سے آیا ہے, تو یہ امت کبھی بھی بے راہ و راہ نہ ہوتی. یہ مائیں ہی اپنے بچوں کو تھام لیتی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز میں اگر باپ کہتا بھی ہے نا کہ اٹھا دو, تو ماں کہتی ہے ہائے نہیں صدقے جاؤں سونے دو پہلے, ہے نا, ماں ہی کہتی ہے نا ہائے رات کو بڑا دیر سے سویا تھا, اللہ ناراض ہو جاتے جی لیکن میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ مائیں ہی ہیں آج کل کی جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنا بگاڑ کر رکھ دیا. تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اتنی ماؤں کو جو ہے وہ اذن دیا کہ وہ سنتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں, وہ کمنٹس کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں بڑا مزہ آیا, آج کی آیت میں یہ تھا, آج کی آیت میں یہ تھا, ہم نے اپنے بچوں کو بتایا. تو خدا را علم حاصل کریں, اور یہ علم صرف اور صرف رمضان کے لیے نہ چھوڑ کر چلی جائیں, بعد میں بھی اس کا علم حاصل کریں, اور اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً تھوڑی 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 چھوٹی چھوٹی کر کے یہ ڈوز دیں. اور اگر آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتی تو مختلف گروپس میں ہمارا آ رہا ہے مسلسل دورہ قرآن چھوٹے بچوں کا. 4 پارے ماشاءاللہ ہو گئے ہوئے, 10 منٹ میں پورا ایک پارا ہوتا ہے جس کو لے کر چلتے ہیں. اگر آپ زیادہ بڑا نہیں بتا سکتی تو 10 منٹ کی وہ ریکارڈنگ این افطار کے ٹائم پر وہ پارا اپنے بچوں کو ضرور سنائے, خود بھی سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں, اور بچوں سے بھی اس میں سے فائدے نکلوائیں اور خود بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس امت کو کوئی بھی پیچھے کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو کیا کہا کہ جب اگر تمہیں کہا جائے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, گھروں سے نکلو, تو چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا, اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا ہے. تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے ہیں. یا اللہ ہم سب آپ ہی کی رضا کے لیے گھروں سے نکلے ہیں, یا اللہ ہم سب آپ ہی کی رضا کے لیے ہاتھوں میں یہ قرآن لے کر آئے ہیں. یا اللہ ہم اتنی ہی استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے سے جہاد کرنے والے ہو جائیں. یا اللہ جی اس قرآن پاک کا جہاد ہماری طرف سے قبول فرما لے, اور یا اللہ جی ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرما دیں. اور یا اللہ جی آپ نے جو آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے, تو یا میرے پیارے اللہ جی ہم بھی اس اجر عظیم کا آپ سے طلب کرتے ہیں, اور یا اللہ جی ہمیں بھی وہ اجر عظیم عطا فرما دیں. لگتا ہے کلاس میں آپ لوگ سو گئے ہیں, نہیں چاہیے اجر عظیم؟ چاہیے تو تھوڑی اپنی آوازیں بلند کریں تاکہ نیند بھاگ جائے انشاءاللہ تعالی. اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر بھی چلاتے ہیں. یا اللہ جی ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلائے, اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے, غور سے سن لیں, تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی انبیاء, صدیقین, شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ, اور یہی لوگ اچھے رفیق ہوں گے. یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے, اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے, اور اللہ کافی ہے جاننے والا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو, پھر اگر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو, اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے. دیری ہو جاتی ہے, روزہ نہیں ہو جاتی ہے. پہلے تو میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں, ہنسی مجھے اپنے آپ پر ہی آئی ہے کہ پہلے مجھے کہا جا رہا ہے, تو ضرور دیر کر دیتا ہے. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کہتا ہے, اللہ نے مجھ سے بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ ہو. ضرور کہے گا کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا, تو پھر اس میں بڑی کامیابی حاصل کرتا. آپ دیکھیں اکثر لوگ جب تکمیل والے دن آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے, اچھا تم نے بھی پورا قرآن پڑھا, تم نے بھی پڑھا, ہائے تم کتنی خوش قسمت ہو, میں اگلے سال پھر تمہارے ساتھ ہوں گی, تم دیکھنا اگلے سال میں سب سے آگے بیٹھی ہوں گی. اگلے سال پھر وہی لوگ تکمیل والے دن نہیں آتے. ہوتا ہے نا ایسے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو تمہیں لے کر آ رہا ہوں نا, جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں, ایک آیت نہیں چھوڑے, اس وقت اتنا فخر محسوس کریں
इतनी खुशी महसूस करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम लोगों को कबूल फरमा लिया। किसके लिए? अपने कुरान के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने बेहतरीन कलाम के लिए, और उस रस्सी के लिए जिसको एक सिरा हमारे हाथ में, दूसरा किसके हाथ में इस वक्त? अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में। तो क्या इस वक्त दिल खुश नहीं हो जाने चाहिए कि मैं तो कुरान खोल कर बैठी हुई हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मुसलसल नजर में हूँ? तो इस पर भी अपने दिलों को खुश कर लें इंशाअल्लाह ताला, और ये अजर अजीम भी अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर हमें देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, बेशक तुम में से कोई ऐसा भी है जो निकलने में जरूर देर करता है। दोबारा पढ़ी हूँ आयत। और फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो वो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं इनके साथ मौजूद नहीं था। और अगर तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो वो गोया जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान दोस्ती ही ना हो। जरूर कहेगा काश मैं इनके साथ होता, फिर मैं बड़ी कामयाबी हासिल करता। फिर जो लोग आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी बेच चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में लड़े, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में लड़े फिर वो कत्ल कर दिया जाए या वो गालिब आ जाए तो हम जल्द उसे बहुत बड़ा अजर देंगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह के रास्ते में कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल कि इसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हमायती भेज, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार मुकर्रर फरमा। और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया वह तागूत, तागूत क्या है? हर वो चीज जो आपको नेकी करने से रोक दे, वो तागूत और शैतान की राह में लड़ते हैं। चुनाचे तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बेशक शैतान की चाल बड़ी कमजोर है। एक बड़े मजे की बात हुई कल, आप लोगों से शेयर करना, और बड़ा मेरा कल मैंने कहा देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला आप कैसे मदद फरमाते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे थे कि कल उन्होंने परसों मुझे कहा कि अब रोजे आ गए हैं तो प्लीज आपने ना हमें लिंक भेजना है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ आने से पहले उनको मैंने पर्सनल पे लिंक भेजा। मैंने कहा अल्लाह करे एक दिन क्लास में आ जाए और उसके बाद जो है सिलसिला शुरू हो जाए, कुछ एक चीज पसंद आ जाए। ऐसा हुआ कि कल उन्होंने ना उसी वक्त अभी लिंक किया ही, बाजी नहीं ये तो 10 बजे का टाइम है और ये तो हमारी हांडी रोटी का टाइम होता है, तो अगर इस वक्त हांडी रोटी नहीं करेंगे तो दोपहर में देर हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब यहाँ से दौरे कुरान के बाद जब मैं गई तो मुझे मेरे ख्याल में हार्डली एक 10 मिनट का वक्फा मिला। उसमें मैंने मैसेज उठाए तो उस खातून ने बड़े उसमें कहा हाय बाजी मैंने तो बिला वजह लिंक भी डिलीट कर दिया, फिर आपको मैंने इतने मैसेज किए तो मैं तो दौरे कुरान में थी। तो कहती है कि आज तो सुबह से गैस ही नहीं थी। तो मैंने कहा या अल्लाह आप कितने प्यारे हैं। मैं कहा या अल्लाह जी आप कितने प्यारे हैं कि मतलब सुबह मेरे दिल में आया कि कितनी बना बनू के बैठ जाएगी सारा कुछ, तो चलो हम जाएंगे, हम शाम में थके आ रहे जाएंगे तो चलो हम शाम में बनाएंगे। तो आपको पता सारा दिन गैस ही नहीं थी, गैस तो आई 3 बजे के बाद। तो फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और मैं जो था वो गलती से मैंने डिलीट भी कर दिया, ना मैं दौरा कुरान जोगी रही और ना मैं अपने जो थे वो खाने बना सकी। तो आप देखिए कि बाजुकात ऐसा भी हो जाता है। जो यहाँ पर रुक कर मुझे याद आया तो मैंने कहा देखिए ये हाथ से गई। बहुत अच्छी मिसाल दी है कि दीन घुमाया दुनिया के पीछे तो दुनिया भी हाथ से गई। बिल्कुल। तो आप ये देखिए क्या अब आपके लिए तो दौरा कुरान करना और आसान हो गया है। आप तो बड़े पुरसकून होकर बैठा करें, दिन में तो गैस ही नहीं आ रही। तो आप अगर घर में रहे या आप दौरा कुरान में आए, गैस आपको 3 बजे ही मिलनी है, खाना आपने उसी वक्त ही बनाना है, इसलिए बड़े पुरसकून होकर दौरा कुरान किया करे। घर जाकर हल्का फुल्का नमाज के बाद केलोला कर लिया करे, वो आपके लिए काफी हो जाता है रात तक के लिए। और उसके बाद अपने खाने बनाए और अपने घर वालों को भी मुस्तफीद करे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर कैसे कैसे अमल करके हम बंदों के लिए दिखाते कि ऐ बंदो देखो मैं तुम्हारे लिए हर तरफ ही आसानी पर आसानी करता चला जा रहा हूँ। अल्लाह ताला खुद ब खुद करवा देते हैं और मदद भी करते हैं बेशक। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद मांगा करें। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन ने कहा था कि अगर तुम लड़ाई से अपने हाथ रोके रखो और हाथ रोके रखो, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और फिर जब उन पर जंग फर्ज की गई तब उनमें से एक गिरोह काफिर लोगों से इस तरह डरने लगा जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए, या वो उससे भी बढ़कर खौफजदा था। वो कहने लगे ए हमारे रब तूने हम पर जंग फर्ज क्यों की। पहले खुद ही कहते थे कि हम पर जंग फर्ज करे, जब हो गई तो कहते क्यों की।
तूने हमें कुछ मुद्दत के लिए मोहलत क्यों ना दी। कह दीजिए दुनिया का फायदा थोड़ा है, आखिरत बेहतर है उस शख्स के लिए जिसने परहेजगारी इख्तियार की, और तुम पर खजूर की गुठली के धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। साथ साथ आयते आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करें ताकि नींद ना आए। और तुम जहां कहीं भी हो, सो तो नहीं रहा ना कोई भी, जाग रहे हैं ना, नींद तो नहीं आ रही ना, क्योंकि वो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ जाग रहे हैं। और मैं चाहती हूँ आप लोग इतने फ्रेश रहें जैसे आप आते ही फ्रेश होते। क्यों? इसलिए कि एक आयत हमारे अंदर उतरने वाली है इंशाअल्लाह ताला, और यही वो आयतें फ्रेश हो जाए। और अगर किसी को नींद आए तो हल्का सा रुमाल जो है, कल जुबैदा ने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया रुमालों का, तो आप जुबैदा से राब्ता करें अगर रुमाल चाहिए तो। और अपने पास जो है एक एक रुमाल रख लिया करें, एक छोटा सा कपड़ा रखा करें, उसको हल्का सा गीला कर लिया करें। फिर वही बात करूंगी, इंसान बहुत आजिज है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसको बड़ा ज़ईफ बनाया, लेकिन अपनी विल पावर से ये उस आजिज़ी को दूर भी कर सकता है, ये भी ज़हन में रखें। तो जरूर अपने आप को इन आयतों के लिए जागता रखें इंशाअल्लाह ताला। चलें अब हम आ जाते हैं अपनी आयत की तरफ। और तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें पा लेगी, खा तुम मजबूत किलों में ही हो। और अगर तुम्हें कोई भलाई मिले तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो क्या कहते हैं, ये तो आपकी तरफ से है। नौज़बिल्लाह ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा करते थे, और बाद में नौज़बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह कहा जाने लगा। कह दीजिए ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। यहाँ रुककर एक बात कहूंगी, हमारे घरों में अक्सर बहुओं के ऊपर ये बहुत उंगली उठाई जाती है। इधर वो बहुएं घर में आती हैं, कहते हैं इसकी नहुसत की वजह से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज आप देखें हमारे पीछे आकर कौन खड़े हो गए, अल्लाह सुब्हाना व तआला वकील बने हुए, और क्या फरमा रहे हैं, सब कुछ किसकी तरफ से है। कोई बंदा करने पर तो कादिर ही नहीं है, कोई बंदा आपके लिए ना कुछ अच्छा कर सकता है ना कुछ बुरा कर सकता है। कौन करता है? अल्लाह सुब्हाना व तआला। तो कोई बहू आकर बेचारी, वो तो खुद अपना घर बार सब छोड़कर आती है, और आते ही हम उसको इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो हम, हालांकि बिल्कुल ये अजीब सी बात है। आप देखिए हमारे घरों में कोई एक शख्स ऐसा होता है, ये ज़हन में रखें, ये हदीस है, हमारे घरों में, या आप अगर किसी को सदका और खैरात दे रहे हैं, या आप किसी को आपके घर से या बाहर से कोई तनख्वाह लेकर जा रहा है, तो हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बच्चों में कोई एक ऐसा होता है जिसकी वजह से अल्लाह ने रिस्क बहुत फरावान किया होता है। ये हदीस है, ठीक है। लेकिन ये कहा है कि बीवी के नसीब से जो है ये मिल जाएगा और मर्द के नसीब से ये मिल जाएगा। हर शख्स हाँ करे या ना करे। आपको पता है हमारे पीछे शारडन का इलाका लगता है, और वहां पर 99% मर्द सारा दिन चर्च स्पीकर होते रहते हैं, और वहां की औरतें आकर गुलबहार के सारे घरों में जो है वो काम करती हैं, वही कमाती हैं, वही घर लेकर जाती हैं। गंदा इलाका है। जी बिल्कुल। तो आप सिर्फ ये देखें कि वो किस किस तरीके से वो सारी कमाइयां करके लेकर जा रही हैं। तो फिर क्या उस बेचारी के नसीब में क्या लिखा हुआ था कि उसको चरसी खावन मिलना था? आप जरा थोड़ा सा ये सोचे, मर्द खुद काम करने की तरफ नहीं आते और फिर जो है वो नसीबों पर बात छोड़ देते। जी रोटी दे दें, बिल्कुल कि बिल्कुल हम सालन के साथ हम रोटी भी ले सके। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आपको पता है सूखी रोटी का एक पुर्जा तक भी वो नहीं छोड़ती। सूखी रोटी वो कहती है हम इसको पहले पानी में बड़ी देर भिगो देते हैं। यकीन जानिए अपने अपने घरों पर, अपने दस्तरखानों पर बड़ा शुक्रिया अदा करें। आपको पता है आटा और महंगा हो गया है, तो आटा मैं यही कह रही हूँ कि वो सूखी रोटियां बेचारियां लेकर जाती हैं, आधा आधा घंटा वो रोटियां पानी में रखती हैं, और फिर वो कहती हैं कि जब वो अच्छी ढीली होती है तो फिर हम उसको उठाते हैं और गरम गरम तवे के हम उसके ऊपर रखते हैं, तो बाजी ये भी सीधी हो जाती है, बाजी ये भी सीधी हो जाती है। मैं उसको कहती हूँ इस पे तो फंगस लगा हुआ, हम फिटे हुए लोग हैं ना, घर में बहुत है, रोटी भी रख दी और ये छानबूरे में डाल दी, और अगर उसके ऊपर सबस सबस फंगस भी हो तो यकीन जाने कहती हैं कि बाजी जिस वक्त हम पानी में डालते हैं ना फंगस वगैरह ऊपर आ जाता है, रोटी तो कम से कम मेरे बच्चे के पेट में चली जाती है। आप देखें लोग इतने मजबूर हो चुके हैं। तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला पता नहीं क्यों इस तरह की बातें अल्लाह ताला फिर बीच में लेकर आते हैं और हमें सोचने का मौका भी देते हैं, और क्यों की बात तो हो ही नहीं सकती। इस वक्त हम कुरान पढ़ रहे हैं,
اور بہترین کلام پڑھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سارے اذن دیتے ہیں کہ ہم بولیں. تو غور سے سن لیں, آج ہم سب غور سے سن لیں. یہ جو چیزیں ہمیں نہیں مل رہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سب کہہ دے کہ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. تو سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں دیتے ہیں. اے انسان, تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری ہی طرف سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا, اور اللہ بطور گواہ کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. اور منافق کہتے ہیں ہمارا کام تو فرما برداری ہے, پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں. اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو سازشیں کرتے ہیں. چنانچہ آپ انہیں جانے دیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اور اللہ ہی کارساز کے طور پر کافی ہے. کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے. اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. چنانچہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, غور سے سنے, بڑی خوبصورت آیت, اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یا اللہ جی, شیطان کے اور ہمارے درمیان دوری پیدا کر دے, اور یا اللہ ہمیں اس کے احکامات کو سنائی بھی نہ دے. یا اللہ اس کے احکامات. چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی راہ میں لڑیں. آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا. اسی طرح آپ سب لوگ بھی جو قرآن کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں, اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں. امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا, اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ ملے گا, جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ ملے گا, اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے, دیکھیں سلام کتنا امپورٹنٹ ہے, آیت بہت خوبصورت ہے, انڈر لائن کرے کہ کیسے دینا ہے. جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو, بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے. تو سلام کرنے کے لیے پہل بھی کریں, اور سلام کو بہت اچھے طریقے سے لوٹایا کریں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے. اور پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے, حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو, اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا, پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ. چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے. پھر اگر وہ دین سے منہ موڑ لے تو تم انہیں پکڑو اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو, اور ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ, مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو, اور وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ لڑائی سے بیزار نہ ہو, تم سے لڑنا چاہتے ہو اور نہ ہی اپنی قوم سے, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا, پھر وہ یقیناً تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں, تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں, تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو. تمہیں ایک اور قسم کے منافق بھی ملیں گے, غور سے سنیں, ایک اور قسم کے منافق بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, یعنی آپ سے بھی امن میں رہیں, آپ کی باتیں بھی ان کو سننی نہ پڑے اور اپنی قوم کی باتیں بھی نہ سننی پڑے, مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں, اپنی زبانیں نہیں روکتے وہ. چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں
اور तुम्हें सुलह और अमन की पेशकश ना करें और लड़ाई से अपने हाथ ना रोके तो तुम उन्हें जहां कहीं भी पाओ पकड़कर कत्ल कर दो। फिर वो लोग हैं जिन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली इजाजत दे दी और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं कि वो किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे, मगर अगर गलती से हो जाए तो ये एक और बात है। आगे कत्ले खता के बारे में आ रहा है। बाज दफा ऐसा होता है कि गाड़ी वगैरह से जो है वो टक्कर लग जाती है, आप देखें मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, और बाज दफा आप स्पीड में भी नहीं होते, किसी दूसरे की गलती होती है। बाज दफा मैं आपको एक ऐसा कत्ल बताऊं कि आप हैरान रह जाएं कि ये मकई का दाना क्या होता है, छोटे बच्चे बैठे हुए थे और मकई का दाना उठाकर दूसरे बच्चे को मारा। कितना भारी होता है जरा मुझे ये बताएं। कोई बहुत बड़ा पत्थर होता है, वो मकई का दाना आकर इधर लगा है, ये बिल्कुल कनपट्टी के पास आकर लगा और वो बच्चा वहीं फौत हो गया। हैरान रह जाए आप। आपको पता है स्कूल में, अभी ये स्कूल का नाम नहीं लेती, अभी ये पिछले साल ही इन दिनों में जिलहिजा के दिन थे और वो एक बच्ची निम्को खा रही थी और निम्को खाते खाते, जैसे हम सब भी अगर कोई चीज खा रहे हो तो हम साथ वाले को ऑफर मार देते हैं, उस बच्ची ने अपनी साथ सहेली को कहा कि तुम भी ले लो। उस बच्ची ने निम्को लेकर ऐसे मुंह में डाली है, वो एक दाना गया है, वो मोटा जो चने का होता है, सांस की नाली में गया। जितनी देर तक स्कूल वालों को बुलाया गया, जितनी देर तक स्कूल वालों ने 1122 को बुलाया, वो बच्ची वहीं नीली हो चुकी हुई थी। तो अब देखिए, जो निम्को देने वाली थी, क्या उसके माइंड में ये तो नहीं था कि मैं कत्ल करना चाहती हूँ। अगर मैं तीर तलवारों की बात करूं तो आपके बाजी कहाँ है तीर तलवार और हमने कहाँ उठाना है, आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी। हम अपनी बात करें तो हमें बात समझ आती है। तो आप ये देखें, हाँ आप ये देखें कि ये है कत्ले खता, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसके ऊपर भी प्लेंटी रखी हुई है जो कि अभी हमारे सामने आएगी कि हमने क्या करना है, और इसके ऊपर जो बहुत खुली आयत आएंगी वो इंशाल्लाह हम जाकर सूरत माइदा में देखेंगे। तो फिर क्या है, अगर और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे, उस पर एक मुसलमान गुलाम पहले आजाद करना है, एक मुसलमान गुलाम आजाद करना, और मकतूल के रिश्तेदारों को खून बहा भी अदा करना लाजिम है। हाँ, अगर वो लोग माफ कर दें तो ये और बात है। फिर अगर वो मकतूल ऐसी कौम में से हो जो तुम्हारी दुश्मन हो जबकि वो खुद मोमिन हो, तो एक मुसलमान गुलाम आजाद करना लाजिम है। अगर वो ऐसी कौम में से हो कि वो तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहिदा हो चुका हो, तो उनके वारसों को खून बहा दिया जाएगा। एक मुसलमान गुलाम आजाद करना होगा। फिर जो शख्स गुलाम आजाद करने की ताकत ना रखता हो, वो 2 माह के लगातार रोजे रखे। ये कफारा अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल करने का जरिया है, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। तो ये नहीं हो सकता कि आप पहले ही दर्जे पर आप रोजे रखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। पहले एक गुलाम आजाद करने का आपने इतना पैसा देना है, फिर आपने दियत देनी है। हाँ, अगर आपको दियत माफ कर दी जाती है। मैं एक ऐसा बच्चा, मैंने पहले भी बहुत दफा बात की उस बच्चे के बारे में कि उससे गाड़ी से टक्कर लग गई थी एक बच्चे को, और कसूर उसका नहीं था, बच्चा ही आगे से भागता हुआ आया था। तो वो बच्चा जो था वो फौत हो गया था। तो वो 18 साल का लड़का था और उन्होंने मकतूल के घर वालों को दियत दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गलती हमारे अपने बच्चे की थी, क्योंकि वालदा और खाला उस बच्चे के साथ मौजूद थी उस वक्त। तो उन्होंने देखा था कि गलती हमारे अपने बच्चे की थी, तो उन्होंने फिर दियत अपने बच्चे की नहीं ली थी। तो ये बच्चा देखे, 18 साल का बच्चा, वो इस कदर डर चुका हुआ था कि फिर उसने मुसलसल 2 माह के रोजे रखे थे। और एक चीज और जहन में रखें, अगर इन मुसलसल 2 माह के रोजों में अगर मर्द है और कोई एक रोजा छोड़ दिया तो फिर पहले से शुरू करेगा, और अगर औरत है बीच में पीरियड्स के दिन आएंगे, वो पीरियड्स के दिनों को फिर गुजारेगी, और फिर उसके बाद जिस दिन वो फारिग होगी उसी दिन से वो फिर अपनी आगे की गिनती जो है वो पूरी करेगी। माएँ थोड़ा सा ख्याल नहीं करती हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो, बेचारी माएँ भी क्या करे, वो सारा दिन इतना थका देते हैं उन्हें घर वाले। 3 महीने रोजे रखवाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपको बता दूंगी, कुरान 2 महीने कह रहा तो 1 महीना, फिर हमने भी तो बताना होता है ना कि हम भी तो थोड़े छोटे मोटे मुफ्ती तो हम भी हैं, तो 2-4 चीजें तो हमने भी डालनी होती हैं। तो बस 2 माह के लगातार रोजे, लेकिन पहले क्या है, गुलाम आजाद करना, उसके बाद क्या है, खून बहा देना, और उसके बाद रोजे आते हैं। ये कफारा अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल करने का जरिया है, और अल्लाह खूब जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है। जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे, गौर से सुन ले, जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे, उसकी सजा नंबर 1 क्या है,
जहन्नुम है। नंबर 2, वो उसमें हमेशा रहेगा। नंबर 3, उस पर अल्लाह का गजब होगा। नंबर 4, उस पर अल्लाह की लानत होगी और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। तो 6 अजाबात है किसी को जानबूझकर कत्ल करने के। काश के वो तमाम लोग जो पैसा लेकर कत्ल कर देते हैं, काश के उनको सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ा दिया गया होता, एक आयत ही पढ़ा दी गई होती, तो आज आपको दुनिया में वो लोग ना मिलते कि जो सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल और एक तो थोड़े से पैसों की खातिर किसी को कत्ल करके चले जाते हैं। वो कत्ले अमद है, और कत्ले अमद की सजा देखें, बाकी सजाएं तो एक तरफ रही, अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस पर अपना गजब कर दे तो वो कहां बच कर जाएगा। तो इस सजा को यहाँ पर कई गुना तक बढ़ाकर एक दूसरे को बताया करें कि देखें अलग-अलग देखें। नंबर 1 इसमें देख लें क्या है कि जहन्नुम। नंबर 2 अल्लाह का गजब। नंबर 2 वो उसमें हमेशा रहेगा। नंबर 3 अल्लाह का गजब। नंबर 4 अल्लाह की लानत, और उसके बाद अजाबे अजीम। 5 चीजें अल्लाह ताला ने एक आयत में बता दी कत्ले अमद के लिए। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तहकीक कर लिया करो कि जो शख्स तुम्हें सलाम करे तो उसके मुतल्लिक ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। आपको उसके दिल का क्या पता। तुम दुनियावी जिंदगी का सामान चाहते हो, अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से माले गनीमत है। तुम इससे पहले खुद भी इस हालत में मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा मामले की तहकीक कर लिया करो। बेशक तुम जो अमल करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। अब गौर से सुन लीजिए रमजान और कुरान, और अल्लाह सुब्हाना व तआला कितनी प्यारी आयतें लाकर हम सबको बता रहे हैं कि उज़्र के बगैर पीछे बैठ रहने वाले मोमिन, उज़्र कोई भी नहीं है, सब कुछ है, गाड़ी भी है, रक्शे का किराया भी दे सकते हैं, उज़्र के बगैर पीछे बैठ रहने वाले मोमिन अल्लाह के राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो इस वक्त आप में से कुछ लोग रक्शे का किराया भी लगा कर आए होंगे, कुछ लोग अपनी टांगों पर भी चल कर आए होंगे, वो अपने जान के ऊपर भी करके आए होंगे जुल्म। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि जो बगैर उज़्र के पीछे बैठे रह गए वो और आप सब लोग बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने जो अजर अजीम आपके लिए रखा वो उनके लिए हो ही नहीं सकता। और वो क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कहते हैं कि फिर आप सबके लिए क्या है कि अपनी जानों और अपनी मालों के साथ जहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जहाद करने वालों को पीछे बैठ रहने वालों के पर मर्तबे में फजीलत दी है। अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया। अल्लाह ने मुजाहिदीन को पीछे बैठ रहने वालों के मुकाबले में बहुत बड़ा अजर अजीम दिया है। तो जो लोग घर से निकल कर आ गए और जिन्होंने क्लिक कर लिया और जो माशाल्लाह फारिग होकर सुन लेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह ये मुजाहिदीन का अजर अजीम हम सबको नसीब फरमा दे। और देखें आप लोग मुजाहिदीन बने, आप घर से निकले, अल्लाह क्या कहते हैं? आप पढ़े ये आयत, दरजातिम मिनहु व मग़फ़िरतुम व रहमा व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। नंबर 1 क्या दिया अल्लाह ताला ने? क्या अजर मिल रहा है? आज जरा दिल बड़ा खुश कर ले। और खास तौर पे मैं ये बच्चे, छोटे छोटे प्यारे बच्चों से भी कहूंगी, ये बच्ची हमारी आई हैं या आज ये लोग आए हैं, जो लोग आज पहली दफा भी आए हैं, वो ये अपने दिल में ये ना लाएं, अभी काउंटिंग ना करें। मुझे पता है 250, 300, 400 इतना पैसा तो आपका लगेगा, इसके नीचे तो आप आ ही नहीं सकते। माशाल्लाह आप लोग कितने दिनों से आ रहे हैं। कभी काउंटिंग ना करें। अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, कोई बात नहीं, पर्स भी मेरा वही भरा रखेगा, वो खाली रहने ही नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। लगाया कहाँ है? अल्लाह ताला के रास्ते में। अब जरा गिने उंगलियों पर, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं हर चीज फिंगर टिप्स पर बताती हूँ, उससे मजा ये आता है कि हमारा दिल जरा और खुश हो जाता है। तो अब गिने आपको क्या दे रहे हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं? दरजात। एक दर्जा नहीं, दर्जे, दरजात उनके लिए अल्लाह की तरफ से दर्जे है। नंबर 2 मग़फ़िरतन, क्या है? बख्शिश। नंबर 3 अल्लाह की रहमत। नंबर 4 अल्लाह गफूर भी है और अल्लाह
5 रहीम भी बन जाता है। तो या मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब आपसे अपनी इस टूटी फूटी बातों पर मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। या अल्लाह अपनी आमीन अच्छी रखे। हम सब आपसे अपनी टूटी फूटी जितनी भी हमारी कोशिशें हैं उन पर रहमतों का सवाल करते हैं। या अल्लाह जी, हम सब के लिए गफूर और रहीम बन जाएं। और या अल्लाह, उन तमाम लोगों को भी हमारी इस मजलिसों में आने की तौफीक अता फरमा दे जिनके दिल ये चाहते हैं कि वो भी कुरान पाक को सामने बैठकर सुनने और सुनाने वालों में से हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो लोग इस हालत में, और जिन लोगों की इस हालत में फरिश्ते जान कब्ज करते हैं कि वो जानबूझकर काफरों में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करते हो, गौर से सुन लीजिए, बड़ा हमें शौक चढ़ा हुआ है। हाय अमेरिका दुनिया की जन्नत, अच्छा फलां लोग विद फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गए, फलां लोग विद फैमिली यूरोप में जा रहे हैं, हाय मैं और मेरे बच्चे रह गए। बड़े खुशकिस्मत तरीन लोग हैं आप लोग, 5 वक्त की अजानें सुनते हैं। मैं इतने पर्सनल लोगों को जानती हूँ, 90% फैमिली, मैं उनको ये जानती हूँ कि जो कि ये कह रहे हैं कि हम एक प्यार, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। आपको बड़ा लगता है ना, हाय हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं, पाकिस्तान में कुछ नहीं। उन्होंने अमेरिका में, वो मुझे बता रही थी कि एक प्याज लेने के लिए हम कम से कम पौने घंटे की ड्राइव से निकले हुए। ये अमेरिका का मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह जमहूरिया चिक में मेरी जो स्टूडेंट है जी, किस किस बात का शुक्रिया अदा करें, बिल्कुल हर चीज की फरावानी। और इसी तरह जमहूरिया चेक में जो यूरोप के बीच में आता है, और मेरी वहां पर स्टूडेंट, उस दिन मेरी उससे बात हो रही थी, वो बच्ची जो थी वो स्टूडेंट भी है और अफगानी है वो लड़की। तो वो लड़की कह रही थी कि मैं बाजी अपने अफगानिस्तान को मिस करती हूँ। मैंने कहा तुम तो यूरोप में हो। कहती है बाजी ऐसे यूरोप को क्या करूं मैं कि यहाँ पर भी घी की और बाकी चीजों की इतनी कमी है कि हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। और आपको पता ना अफगानी जो है वो पुलाव और चावल और जबरदस्त चीजें, जी जी गोश्त। तो वो कहती है बाजी मैं इतना मिस करती हूँ। अब देखिए वो कहती है कि बाजी हम इन चीजों को मिस करते हैं। तो हमने दुनिया की जन्नत किसको बना लिया? अमेरिका को, कनाडा को, फ्रांस को, गैर मुल्कों, गैर जो है मुसलमानों के जी हलाल है कि हराम है। तो आप ये देखिए कि आज की आयत कितनी खूबसूरत आई है। जी बिल्कुल, आज की आयत कितनी खूबसूरत आई है। अपने आप पर फख्र करें। हमारे तो अपने बच्चे भी कह देते हैं ये कोई मुल्क है? जी नहीं, यही मुल्क है और बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और इसमें रहने पर भी फख्र हासिल करें। आपको पता है जब आप दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं तो आप तीसरे दर्जे के शहरी होते हैं। जो कुछ भी है, बेशक लॉ एंड ऑर्डर वैसा नहीं है, आपकी अपनी जगह तो है, आपके अपने लोग तो हैं। अकेले जाकर क्या करेंगे और कहां कहां भटकते फिरेंगे। और फिर गौर से सुन ले कुरान क्या कह रहा है कि काफिरों के मुल्क में जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते रहे और वो इस हाल में मर गए, तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं तुम किस हाल में रहे? वो कहते हैं हम तो जमीन में कमजोर थे, यानी गैर मुल्क था, वहां पर हम ना अल्लाह का नाम बुलंद कर सकते थे, ना हम खुलेआम नमाजें पढ़ सकते थे, ना हम अपना हिजाब ले सकते थे। तो तब फरिश्ते ये कहेंगे कि अल्लाह की जमीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। चुनाचे यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। वो सारे जो है फॉरेनर्स भी हमारी क्लास में होते हैं, तो ये बात नहीं है कि भाई हर एक जगह पे जो होगा वो आपके लिए गुनाह है। अगर आप वहां पर रहकर अपनी नमाज, अपना कुरान, अपने इक्तदार, अपनी बाकी तमाम चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो वो जगह भी आपके लिए आसानी वाला मामला करने वाली हो जाएंगी। लेकिन घर वालों अपने बच्चों पर अगर इस राह पर चल निकले तो शुक्र अदा करें। और ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद है कि ऐसे मुल्कों में भी रहकर जहां अजान की भी आवाज नहीं आती, ऐसे मुल्कों में भी रहकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो जरूरत नहीं है कि आप जन्नत हासिल करने के लिए गैर मुल्कों में ही जाएं। आपने, मैं एक चीज बड़े, मैं ये आजकल अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा अगर इस मुल्क में तुम कुछ नहीं कर सके ना, तो बाहर जाकर भी तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो। अगर जो कुछ करना है पहले यहाँ तो करके दिखाओ, फिर जाओ, सियाहत करो, घूमो फिरो, जमीन के ऊपर चलो और देखो और दीन को फैलाओ और जरूर जाओ। लेकिन इस हाल में गैर मुल्कों में ना मर जाना कि तुम ये कहो कि मैं जो हूं बड़ी मैं मजबूर हो गई थी और मैं
पर्दा नहीं कर सकी और मुझे अपने आप को नंगा करना पड़ा, या मुझे कुरान नहीं मैं कुरान ना पढ़ सकी, या मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए, तो फरिश्ते क्या कहते हैं कि तुम्हें चाहिए था कि अल्लाह की जमीन बड़ी वसी थी, तुम हिजरत कर जाते। मगर वो मर्द और औरतें और जो बच्चे, गौर से सुन लें, मगर वो मर्द, औरतें और बच्चे जो वाकई ही बेबस हो, वो उस जगह से निकलने का कोई वसीला, कोई रास्ता ना पाते हों। इसलिए उन लोगों के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ कर देगा, और अल्लाह बहुत माफ करने वाला और नहायत बख्शने वाला है। जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करे और जमीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और गुंजाइश पाएगा। गौर से सुन ले। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने की खातिर अपने घर से निकले, अगर कोई मुल्क से बाहर भी जा रहा है तो उसको भी कहा करें कि अपनी नीयत बदल लो, अल्लाह और रसूल की खातिर हिजरत करे, और फिर उसे रास्ते में मौत आ जाए तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे वाजिब हो गया, और अल्लाह नहायत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज कसर कर लो। यहाँ पर नमाज कसर की इजाजत दी जा रही है। अगर तुम्हें डर हो कि काफिर हमला करके तुम्हें फितने में डाल देंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मोमिनों के दरमियान हो, फिर उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, तो उनमें से एक गिरोह अपने हथियार लटकाए हुए हो, आपके साथ जमात में खड़ा हो, फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए। दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी, वो आपके साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव साथ ले ले, अपने हथियार लटका ले। काफिर चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से जरा गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर यकबारगी धावा बोल दे। और अगर तुम्हें बारिश से तकलीफ हो या तुम बीमार हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने हथियार एक तरफ रख लो, अपना बचाव साथ ले लो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार किया हुआ है। और जब तुम नमाज अदा कर चुको तो खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो। फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि पूरी नमाज पढ़ लो, तो फिर बेशक अल्लाह मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों में अल्लाह ने नमाज फर्ज की है। ऐसा हुआ था कि जिस वक्त सुलह हुदैबिया का सिलसिला चला, और हम सब जानते हैं कि सुलह हुदैबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में उम्रा करने के लिए जाने नहीं दिया गया। अब ऐसा था कि इन लोगों को दूर जगह में पड़ाव करवा दिया और इन सबको जो था वो रोक दिया गया। जब रोका गया तो इनके पीछे मुख्तलिफ तरह के दस्ते लगा दिए गए और उन दस्तों का एक एक अमीर था। तो ऐसा हुआ कि ये जिस जगह पर रुके हुए थे उस जगह का जो अमीर था वो खालिद बिन वलीद थे उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया, वो देखते रहे, मुसलमानों को वॉच करते रहे। अब जोहर की नमाज इन लोगों ने जब पढ़ी तो जाहिरा आप जानते हैं कि हथियार वगैरह तो इनके पास कुछ थे नहीं, और ये सब लोग जो थे इसी तरह खाली हाथ हो गए। तो जो थोड़ा बहुत ये तीर या तलवार या अपने साथ इन्होंने हिफाजत के लिए रास्ते में रखा हुआ था, बस वही था, वो भी रख दिया। अब क्या हुआ कि जब इनको नमाज पढ़ते देखा तो खालिद बिन वलीद ने अपने बाकी सारे दस्ते वालों को कहा, अगली नमाज में हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। और फिर क्या हुआ, अगली नमाज से पहले पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयतें ले आए और क्या बताया, हथियारों के साथ नमाज अदा करो। एक दस्ता नमाज पढ़ेगा और एक दस्ता पीछे हिफाजत करेगा। और देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने मेहरबान है। आज भी आपको पता है आर्मी में जब भी जंग की हालत होती है, हालत जंग में नमाज लाजमी पढ़ाई जाती है। कुछ पता नहीं चलता, किसी वक्त भी वो शहीद हो सकते हैं। तो उसका भी तरीका यही होता है, एक दस्ता आगे जाता है, 2 रकात, क्योंकि कसर नमाज 2 रकात होती है, 2 रकात की जो है वो नियत की जाती है। जो पहला दस्ता होता है वो 1 रकत पढ़ता है, इमाम खड़ा हो जाता है, वो दस्ता फिर पीछे आ जाता है, अपने हथियारों के साथ नमाज पढ़ी जाती है। जो पीछे, जब वो पूरे मोर्चे पकड़ लेता है तो फिर जो पीछे का दस्ता होता है वो आगे जाता है अपने हथियारों के साथ और जाकर वो दूसरी रकत पढ़ता है। और जो नियत की होती है इमाम ने 2 रकत की, वही 2 रकत फिर सबके लिए जो है वो पूरी हो जाती है। और ये नमाज कौन सी नमाज है, ये हालत जंग की नमाज है, जब जंग में हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि जंग के बाद फिर क्या करना है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत अच्छी तरह याद करना है। कैसे,
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یاد کرنے کے لیے بتایا اسی طرح اسے یاد کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیا کیا؟ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کی ہے۔ اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں، دشمن بھی تو تکلیف اٹھاتا ہے جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔ کیا امید رکھتے ہیں؟ یا غازی یا شہید، ہمیں تو دو ہی امید ہوتی ہیں۔ اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے۔ اور اللہ سے بخشش مانگے جناب، ہم سب کو آرڈر دیا جا رہا ہے، اور اللہ سے بخشش مانگے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کو بخش دیں، یا اللہ جی ہم پر رحم فرما دیں، یا اللہ جی ہم پر اپنا کرم فرما دے، اور یا اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے تو یہاں دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آیا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو لوگ برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ جو کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی کمائی اس کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ جو کوئی شخص خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے دے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے، تو پھر ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جاتا ہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا۔ غور سے سن لے، دوبارہ آیت آ گئی کہ وہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً نہایت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل وہ سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ تیرے بندوں میں سے میں ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کر دیں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ بھی نہیں، اور لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے۔ خوش ہو جایا کریں ایسی آیتوں پہ، اپنے چہرے کھلا لیا کریں کہ ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے کیا ہوگا؟ نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے؟ کوئی بھی نہیں میرے اللہ تعالیٰ۔ اور انجام کا دار و مدار نہ تو تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا
اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ یا اللہ جی ہم آپ ہی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ جی ہم آپ ہی کا قرب چاہتے ہیں، اور یا اللہ جی ہم آپ ہی کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جی ہم سب کو اپنے قریب کر لیں، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیں اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیں۔ اور جو کوئی نیک کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، غور سے سن لیں، آج بار بار یہ آیت آ رہی ہے، جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی بھی کرے۔ وہ صرف حق پرست تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ مزہ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہوتے کون ہو بندے؟ کوئی اور تمہارا ہے، عورتوں کیا تمہارے پیچھے کھڑا ہو؟ تمہارے لیے حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود تمہیں جو ہے ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ وہ اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آپ نے سورت میں پڑھ لی ہیں شروع میں، جنہیں اس کا مقررہ حق تم نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں بھی تمہیں حکم دے رہا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنی شوہر کی طرف سے ظلم اور زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے، اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی اور عورت پسند آ جاتی ہے، اور اب عورت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عورت جو ہے وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ تو اس میں پہلے والی عورت کیا کرتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میں اب اس شخص کی شکل بھی نہ دیکھوں، میں اپنے بچے لوں اور یہاں سے چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو بھی بہت کچھ سکھایا، اور اسی طرح علماء بھی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس کے بچے بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو کوشش کریں کہ کچھ لے دے کر کیسے اپنے نان نفقے پر، اپنے بچوں کے نفقے پر تھوڑا بہت سمجھوتا کر اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رہنا ہی ہے، اور اگر آپ اکیلی ہونا چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہی نہیں ہے کہ شوہر کی دوسری شادی ہو چکی ہوئی ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی بہترین راستہ بن جائے گا اور آپ کے لیے بھی کوئی بہترین راستہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مشورہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں وہ مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ مشورہ عورت کو کیا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس مرد کے بچے بھی اسی مرد کے ہیں۔ آپ دیکھیں زیادہ تو رلتے پھر بچے ہیں نا، بچے ہی بیچارے ہوتے ہیں جو کہ ارد گرد پھیل جاتے ہیں اور پھر ان بچوں کی کوئی سے نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ بچے اسی مرد کے ہیں، اگر تم بھی کچھ تھوڑا بہت اپنے حقوق میں کمی بیشی کرو، کیونکہ دوسری عورت کے آنے سے کمی بیشی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو مکمل حقوق ملے، کیونکہ ایک شخص انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے کہ سب کو پورے حقوق دے گا، تو کچھ کمی بیشی کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر اسی مرد کے ساتھ رہو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو تو بہتر ہے، لیکن اگر علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو تم پر جبر نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہے۔ اگر ہونا چاہتی ہو تو ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی اچھا زوج رکھ دے گا اور اس کے لیے بھی کوئی اچھا اور بہترین وسیلہ کر دے گا۔ آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو۔ سن لیا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، جو مرضی کوشش کر لو، دو بیویوں میں عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جانا اور دوسری کو بیچ میں لٹکتی مت چھوڑ دو۔ اکثر مرد جو ہیں پہلی بیوی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو
परहेजगार बनो तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। और अगर वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो जाए, अब ये आयत है, देख लें इसे गौर से, अगर वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो जाए तो अल्लाह अपने फजल से हर एक को दूसरे से बेनियाज कर देगा, दोनों को देगा अल्लाह ताला। और अल्लाह बड़ा वुसअत वाला और खूब हिकमत वाला है। और आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। हमने तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी उनको और तुम्हें भी यही हुक्म दिया था कि अल्लाह से डरते रहो, फिर तुम कुफर करोगे तो बेशक आसमान और जमीन में जो कुछ भी है अल्लाह ही का है। अल्लाह बहुत बेपरवाह काबिल तारीफ है। आसमान और जमीन में जो कुछ भी है अल्लाह ही का ही है। अल्लाह बतौर कारसाज काफी है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएगा। पर में कौन होते हैं यहाँ आने वाले, बैठने वाले और कुरान पढ़ने वाले? दिल में अगर इतनी सी भी बड़ाई आने लगे, क्या हाँ आज तो देखो मैंने कुरान पाक का पारा पढ़ लिया, और देखो आज तो मैंने ये कर लिया, और हम लोगों में जाकर फख्र करने लगे, इस आयत ने ला के यकीन जाने जब भी ये आयत आती है मुझे ऐसे लगता है हम फिर बिल्कुल जीरो हो गए। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं अगर चाहूं, होते कौन हो तुम लोग, तुम लोगों को ऐसे हटाऊं और तुम्हारी जगह ऐसे बेहतरीन लोग लेकर आऊं जो तुमसे ज्यादा समझने वाले और तुमसे ज्यादा जानने वाले हों। अल्लाह ताला से दुआ करे कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, जो आपने हमारी इस कुरान पढ़ने और कुरान पढ़ाने की जो ड्यूटी लगाई हुई है मेरे अल्लाह जी, इस ड्यूटी से हमें कभी भी दूर ना करना। या अल्लाह जी ये ड्यूटी हमारी सदा लगाई रखना। और या अल्लाह हमारी कुछ साथी ऐसे हैं जो मजबूर हो गए हैं, जो परेशान हैं, उनकी ये ड्यूटी इस साल नहीं हो पा रही है, या अल्लाह जी उनको भी इज्जत दे दें कि वो भी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी इंचार्जेस के लिए बहुत दुआ करे जो इस साल कुछ रह गई हैं और अपने बहुत बड़े उज़र की वजह से रह गई। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें भी कबूल फरमा ले। और खैर है अभी तो बिल्कुल शुरू के रोजे हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसी सेहत दे, ऐसा बेहतरीन खून, ऐसा बेहतरीन जिस्म दे कि वो इन्हीं दिनों में दोबारा से कुरान पढ़ाने वालियों में भी शामिल हो जाए। इतना तो मुझे पता है कि वो सुनने वालों में तो है, लेकिन वो सुनाने वालों में भी शामिल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो अपनी ड्यूटी के लिए रोजाना सुबह उठकर अल्लाह ताला से तौफीक मांगा करे, दुआ किया करे। जैसे रोजे की नियत करते हैं, दौरे कुरान के लिए भी रात में इसी तरह से नियत कर लिया करे और कहा करे या अल्लाह जी आप मुझे इज्जत दे, आपकी तौफीक के बगैर मैं ये काम कर ही नहीं सकती। आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते, ये आयत दोबारा पढ़ूंगी, ए लोगों अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और अल्लाह इस बात की पूरी कुदरत रखता है। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। तो दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ मांग ले। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। या अल्लाह जी हमें दुनिया भी चाहिए, या अल्लाह जी हमें आखिरत भी चाहिए, या अल्लाह जी हमें आपका फजल भी चाहिए, या अल्लाह जी हमें आपका दीदार भी चाहिए, या अल्लाह जी हमें रूहुल कुदस के हाथों मदद भी चाहिए, या अल्लाह जी हमें अपने घरों में, अपने मालों में, अपने सामान में, अपने बच्चों में बरकतें भी चाहिए। और या अल्लाह जी इन तमाम बरकतों के साथ आपका अजर अजीम भी चाहिए। या अल्लाह जी हम इस महफिल को वसीला बनाते हैं, आपसे अजर अजीम की दुआ करते हैं। या अल्लाह जी हम सबको वो अजर अजीम नसीब फरमा दें, और या अल्लाह जी हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।